Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning, students. Students, take out your general science books. Today we are going to do the exercise of unit number 7. So, take out your books and open page number 66 and look at question number 1. There should be pencil with you in your hand. स्टेशनरी भी निकाल दी और आप लोग बुक्स में सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से राइटिंग करेंगे. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1. बटर गोइंग सॉफ्ट ऑन अ हॉट डे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. कि बटर जो होता है वो सॉफ्ट होता है जब उसको हीट मिलती है, गर्म दिन पे वो सॉफ्ट हो जाता है. तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? मेल्टिंग की, फ्रीजिंग की, बॉइलिंग या एवापोरेशन. मेल्टिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो मेल्ट होता है. नंबर 2. विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर? साउंड. साउंड जो है ये मैटर की एग्जाम्पल नहीं है. कप ऑफ टी भी एग्जाम्पल ऑफ मैटर है. एयर अराउंड अस भी मैटर है. पीस ऑफ पेपर भी मैटर है. एंड साउंड जो है इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर. नंबर 3. विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज कौन सी चेंज? इरिवर्सिबल चेंज जो कि दोबारा अपनी ये परमानेंट चेंज नहीं होता, ये दोबारा अपनी कंडीशन में आ सकते हैं. टीयरिंग ऑफ पेपर. क्लियर. तो अगर हम वोट को बर्न करें, पेपर को बर्न करें या मीट पका दें तो दोबारा हम उसको अपने रॉ मटेरियल में नहीं ला सकते. हाँ, अगर आप लोग पेज टेयर करें तो उसको दोबारा आप लोग ठीक कर सकते हैं. So this is a physical change in circle option A. Then look at number 4. Chemical changes are dash reversible, irrepressible, irreversible, invisible. Irreversible. We know that chemical changes are permanent change and they are also called irreversible. So in circle option C. Number 5. Look at number 5. Clouds are formed by water vapor condensing. वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो क्लाउड्स बनाते हैं और वो क्लाउड जब हैवी होते हैं तो इससे रेनफॉल होती है. सो इन सर्कल ऑप्शन ए इन नंबर 1, ऑप्शन डी इन नंबर 2, ऑप्शन ए इन नंबर 3, ऑप्शन 4 इन सी एंड ऑप्शन 5 इन 5 ऑप्शन बी. नंबर 1 में ए को इंसर्कल करें, 2 में डी को करें, 3 में ए को कर ले, 4 में सी एंड 5 में बी को इंसर्कल करें. नो लुक एट द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2. Anything which has mass and occupies space is called matter. matter. matter राइट करें ब्लैंक में. नंबर 2. The amount of matter in an object is called its mass. mass mass. Number 3. Solids have a dash shape, definite shape. We know that the particles of solids are arranged in regular pattern and they cannot move. They just vibrate on their place. So they are having definite shape. Write in the blank definite shape. Number 4. The three-dimensional space occupied by an object is called its volume. Number 5. Liquids do not have a definite shape. इस blank में लिखी shape. हमें पता है कि liquid का definite shape नहीं होता क्योंकि हम इसको जिस container में भी डाल दें उसी का shape ले लेता है. But they have a definite volume. Number 6. Particles of solids are usually arranged in a dash pattern, regular pattern. Clear? Number 7. On observing heat, a solid changes into a gas. This process is known as sublimation. Solid जब directly gas में convert हो जाता है तो उस process को sublimation कहते हैं. Number 8. Upon cooling, a gas changes into liquid. This process is known as condensation. Number 9. A change of state is also known as a physical change. Number 10. Ice is the solid state of water. नंबर 1 ब्लैंक में लिखे मैटर, 2 में मास, थर्ड 1 में डेफिनेट, फोर्थ में वॉल्यूम, फिफ्थ में शेप, दूसरे वाले में वॉल्यूम, 6 1 ब्लैंक में आप लोग राइट करें रेगुलर, 7th 1 में सब्लिमेशन, 8 में कंडेंसेशन, 9 में फिजिकल एंड 10 में सॉलिड. नाउ लुक एट पेज नंबर 67. पेज नंबर 67 पे क्वेश्चन नंबर 3 है. मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए with the correct term in column B. column A और column B को हमने मैच करना है. So number 1, the three-dimensional space occupied by an object. So we know that this is a volume. So number 1 को F के साथ आप लोग मैच कर लें. number 2 है the amount of matter in an object. We know that this is mass. So in match number 2 with option E.
नंबर 3 में देखिए द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप और वॉल्यूम जिसका होता है वो कौन सा स्टेट है? सो दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इन सर्कल मैच द नंबर 3 विथ जी। नंबर 4 की तरफ देखिए द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जिसका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। सो वी नो दैट दिस इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। मैच द कॉलम मैच नंबर 4 विद ऑप्शन एच। Number 5, the states of matter which does not have definite shape or definite volume. So this is a gaseous state. So match करें फिफ्थ वन को A के साथ। Number 6, the change of state in a solid change into a liquid. This is called melting. कि जब चेंज आएगा सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड बनता है। दिस इज मेल्टिंग। सो मैच नंबर 6 विद ऑप्शन बी यहाँ पे। नंबर 7, द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड। जिसमें लिक्विड सॉलिड बन जाता है। सो दैट इज़ अ फ्रीजिंग। क्योंकि हम जब वाटर को रख लेते हैं तो वो लिक्विड होता है, जब वो फ्रीज होता है तो आइस बन जाता है। से दैट इज़ मेल्टिंग। नंबर 8, द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस। कि क्या है लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। तो ये कौन सा स्टेट है, इसको क्या कहते हैं? इसको इवोपोरेशन। वी नो कि हम अगर वाटर को हीट देंगे, बॉईल करेंगे तो वो स्केप हो जाएगा। किस तरह? क्योंकि वो डिसअपेयर हो जाएगा, वो वेपर्स की फॉर्म में इवोपोरेट हो जाता है। सो दिस इज इवोपोरेशन। मैच नंबर 8 विद ऑप्शन डी। क्लियर, समझ आ गई? नंबर 1 को ऑप्शन एफ के साथ मैच कर ली, नंबर 2 को ऑप्शन ई, नंबर 3 को ऑप्शन जी, नंबर 4 को ऑप्शन एच के साथ मैच करें, नंबर 5 को ऑप्शन ए, 7 विद ऑप्शन बी, 6 विद ऑप्शन बी, 6 विद ऑप्शन बी, 7 विद ऑप्शन सी, 8 विद ऑप्शन डी। इनको मैच कर ले नीटली विद द रूलर। आप लोग लाइन लगा दे। तो आज इसके साथ हमारा एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये इंशाल्लाह हम रिटन वर्क नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ये आप लोग देखिए, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। नीटली आप लोग इन सर्कल करें, ब्लैंक्स को नीटली फिल करें एंड करेक्ट स्पेलिंग्स राइट करें। ये ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 7 ऑन पेज 67, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रिटर्न वर्क स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। बट डू नीट एंड टाइडी वर्क इन बुक्स एंड नोटबुक्स ऑल्सो। क्लियर?